Am I audible to you all? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. So this is the problem. We are continuing DI. जो DI हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ये जो प्रॉब्लम था ये 2022 दिसंबर में आया था. ठीक है. This problem was asked in the year 2022 in the December session. So let's read the question first. I'll read the question both Hindi and English, and then I'll explain. We will try to solve this problem together. Okay, the table below shows the number of males and females working in 6 nationalized banks in India, namely SBI, PNB, UCO, Bank of Baroda, BOB, IOB, and UBI, located across 6 cities, A to F. So A, B, C, D, E, F, E, F, these are the name of the cities along this axis. And along the rows, this is called the name of the bank. SBI, PNB, UCO, BOB, IOB, and UBI. And these are the locations. They are located across 6 cities, A, B, C, D, E, F. Okay. And this is the number of employees, number of males. M means male, F means females. Number of male and female working in the bank across all cities. These are the information given to you. Okay. A to F, UPI located across 6 cities, F to F, based on the data in the table, answer the questions. Now, whatever they have given you, the information, whatever information they have given to you, based on this information, based on the available resources, you have to answer the questions. Okay, एक बार हिंदी में इसको देख लेते हैं. नीचे दी गई तालिका में भारत के 6 शहरों में, ठीक है, 6 शहरों ए टू एफ में स्थित 6 राष्ट्रीयकृत बैंक क्या क्या नाम है? एसबीआई, पीएनबी, यूको, बीओबी, आईओबी और यूबीआई में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की संख्या प्रदर्शित की गई है. जो एम है वो पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एफ है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मेल एंड फीमेल. तालिका के आंकड़ों में आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए. ठीक है, बैंक में कर्मचारियों का शहरवार वितरण. ठीक है, किसके शहर में, और या फिर सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द बैंक्स. दिस इज गिवन, these are given in the table. Okay, now the table is same. So suppose SBI, if you consider SBI, अगर हम SBI को consider करते हैं, उस केस में in city A, in SBI, in city A, there are 553 males and 224 females. In PNB, in city A, 673 males and 116 females. UCO 443 and 500. BOB in city A 534, 454. इस तरह से हमें उसको देखना है. टेबल क्लियर है? इज द टेबल, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. टेबल क्लियर है? सबको क्लियर है टेबल? ठीक है, अगर टेबल क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट चलिए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. Let's see the first question. The first question they have asked, the ratio of the number of females to the number of males in city E working in SBI, UCO and IOB together is. Okay, so they have asked us to find the ratio of females and males. Females is to male. Where? In which city? City E. What are the banks? SBI, UCO, IOB. Means you have to find the total number of females working in SBI, UCO and IOB in city E, and the number of males working in the same city, same bank. Then you have to find the ratio. Is it clear to you all? Yes, sir. Okay, हिंदी में शहर ई में कहा गया एसबीआई, यूको और आईओबी में समग्र कार्यरत महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या करना है. क्या करना है? सीटीई को लेना है, सिंपल है. सीटीई बोल दिया गया. आपको सीटीई में फीमेल लेना है, इस टू मेल लेना है. कहा बैंक क्या क्या है? SBI, UCO, and यूको, IOB. एसबीआई, यूको, आईओबी एंड द सेम एसबीआई, यूको एंड आईओबी.
So they have asked you to find the ratio of female and male from CTE working in SBI, UCO and IOB together. So you have to find the number of females working in SBI, UCO, IOB together in CTE, and the same thing for male for the same cities for the same banks. ठीक है, so देखते हैं क्या होता है, कितना निकलेगा, फीमेल कितना होगा. SBI, UCO और IOB ना, SBI, UCO और IOB. Okay, CTE female. Okay, CTE female, SBI, UCO, IOB. See, first consider SBI. CTE, this is the city. Female means this one, SBI, then UCO, then IOB na. जी सर. IOB. So these are the number of females, 120 plus 234 plus 334. Is it right? Number Yes, of sir. females in CTE, number of females working in SBI, UCO and IOB are 120 plus 234 plus 334. Is it right? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So 120 plus 234. 120 plus 234 plus 638 होगा सर. 334 है. 638 हो जाएगा सर. 688. अच्छा 688. और मेल कितना है? SBI, UCO, IOB. SBI, UCO, IOB. मेल हो जाएगा आपका 234. ये हो जाएगा 234 SBI, then UCO, then IOB. Means 234. Wait a minute. SBI, then UCO, then IOB. Means 234, 350, 124. 234, 808 हो जाएगा सर. 350. 350. Now find the ratio. 124. 124. हाँ सर, 3 लेने हैं ना. So total is 708. 708 होता. 34 था सर कि 334 था सर. 708. अच्छा 70 कौन सा, ये वाला. रुकिए इसमें गलत है. यस, मेल का सर Yes, 708. 808 हो जाएगा सर. 708 ना. Option is 3, sir. 172 is to 177. ओके, जो भी आता है वो उसको आंसर हो जाएगा. इसको छोटा करिए, छोटा करके देखिए कितना आता है. इसको आप छोटा करते रहिए. छोटा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 344. अगर 2 से हम छोटा करेंगे इसको, ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका 354. ओके, फिर से 2 से 177 और 172. 172 177 आ जाएगा. सॉरी उल्टा हो गया. 172 और 177 54. ठीक है, 177 और 172. यस, 172 हो जाएगा और 177 150 प्लस 350 प्लस 2. यस 177. ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबको? इज द कैलकुलेशन क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is very easy. So again I'm repeating the same thing. Everything will be given to you in this table, in tabular format. Everything will be given to you. ठीक है, आपको जस्ट क्वेश्चन को समझना है. You have to understand the question what they have asked you, और उसको निकालना है. You have to find out whatever they have asked you. ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना है. Then you calculate. ठीक है. इसमें कोई डाउट है किसी का, बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. If you have any No. doubt in this question, you can Question, ask, sir. otherwise we'll move to the next question. हाँ बोलिए. सर क्वेश्चन एक बार समझा देंगे सर. क्वेश्चन में पूछा, देखिए, शहर ई में, क्वेश्चन दिख रहा है ना, शहर ई में SBI, यूको और IOB में समग्र कार्यरत महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है. मतलब शहर ई में ये जो 3 बैंक लिखा गया सामने, SBI, यूको और IOB, इन तीनों को मिला करके महिला कितना और पुरुष कितना है पूछा गया. उन दोनों का अनुपात क्या है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? मतलब इन शहर ई में देखिए, शहर ई में ये जो 3 बैंक है, SBI, यूको और IOB, ठीक है, ये 3 बैंक के बारे में पूछा गया. देखिए SBI,
SBI, यूको, IOB। शहर ई में कितना फीमेल्स है इस बैंक में? SBI में शहर ई में कितना फीमेल्स है, यूको में शहर ई में कितना फीमेल्स है, IOB में शहर ई में कितना फीमेल्स है, उसको टोटल नंबर क्या है, और उसी बैंक का उसी शहर में मेल कितना है, ठीक है, निकालने के लिए पूछा गया और उसका रेशियो निकालने के लिए बोला। क्लियर है इतना? जी ओके सर। तो SBI सिटी को मैंने कंसीडर किया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा। तो SBI यूको IOB में मिला करके कितना फीमेल काम करते हैं, ठीक है। सेम सिटी में इस 3 बैंकों में टोटल कितना महिला है, और वही सिटी में वही 3 बैंक में पुरुष कितना है, इसका रेशियो निकालने के लिए बोला, ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स with respect to the number of males across all the banks together in city B। क्या पूछा? शहर बी में सभी बैंकों में मिलाकर के, ठीक है, मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? क्या करेंगे? What to do? CTP फीमेल को ऐड CTP कर देंगे तब फीमेल हाँ, को। CTB पहला आपको पूछा गया, CTB, तो आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया कि मुझे CTB का ही कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? देखिए, अक्रॉस ऑल बैंक्स। So female. first thing we have to get it clear that CTB you have to consider according to the question. So first you consider CTB. Now what to consider in CTB? All banks, ठीक है, all banks। आप तीसरा स्टेप क्या, all banks का क्या? फीमेल एंड फीमेल कितना है और मेल कितना है, ये निकालना है ना, पहले यही निकालना है ना। फर्स्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फीमेल्स, देखो फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है, निकालना है। निकाल के फिर पूछा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, दोनों का नंबर निकालेंगे। फिर आपको देखना है कि पुरुष का कितना परसेंट महिला है, ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द total number of females across all the banks in CTB, then number of males across all the banks in CTB in the same city, then you have to find out the percentage of females with respect to the number of males, ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो CTB में टोटल फीमेल कितना है across all banks ना, नंबर ऑफ फीमेल्स, मैं F लिखता हूँ, ठीक है, आई एम डिनोटिंग फीमेल्स बाय F, नंबर ऑफ फीमेल्स इन all banks, all across all banks in CTB कितना है, देखो, now you have to consider only CTB, ठीक है, only CTB I am considering now, only female I am considering, okay, female, 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 female across all banks, clear। So it will be how much? Female will be how much in CTB? 456 plus 256 plus 345 plus 285 plus 166 plus 287, is it right? यस सर दैट्स इट। ठीक है, तो उसको पहले निकालो, CTB फीमेल, CTB फीमेल, ओके, नाउ राइट CTB फीमेल, ओके, नाउ राइट 456 plus then 256 plus then 345 plus then 285 plus 166 plus 287। थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना इधर उधर से तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इसको हम करेंगे 1795 कितना, हाँ ये है सर 179। 1795। ठीक है 1795 है ना, ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, किसी का कोई दूसरा आंसर है तो बताना, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स across all the banks in same city, right? Number of 2046 आता है सर। across 2046 all city
all city, no, across all banks in same city. All banks in CTB. हाँ, कितना आएगा? कौन बताएगा? इसको पहले लिखते हैं, कैसे कैसे लिखना है? 254 प्लस 346 plus plus 366 366 है ना? Plus 478 Yes, sir. plus 256 plus 346, यही है ना? Yes, sir. कितना आएगा? बोलिए। 204. 2046 ठीक है, ओके। आप देखिए क्या पूछा, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, हमने सब कुछ निकाल लिया। देखिए, शहर बी में सभी बैंकों को मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, परसेंटेज निकालना है। जो पुरुष का संख्या है उसका कितना परसेंट महिला है। ठीक है, तो पुरुष कितना हो गया? 2046. So they have asked you to find out the percentage of number of females with respect to the number of males. So you have found out the total number of females and the total number of males. Now they have asked you that what percentage of females are there with respect to the number of males. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? How to find out? This is the number of means female by male into 100%. Correct? 2046 and then 1795 into 100%. Now calculate. समझ में आया चीज? समझ में आया? कोई डाउट है? No, sir. इसको कैलकुलेट करिए, कितना आता है देखिए। ये आपका सीधा डिवाइड करके करिए, 87.7% आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 88%। 87.73 हाँ, 87.7374 ऐसा कुछ आता है, ऑलमोस्ट 88%। तो आपका आंसर में 88% है, तो आपका 88% इज द आंसर। So if you compare the meaning of this question is, if you compare the number of females to the number of males, it will be 88% of the male. मेल का 88%, मेल का जो नंबर है उसका 88% का फीमेल है। कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट। पवन जी, आपको समझ में आया? जी सर, एक कंडीशन में कंफ्यूजन थोड़ा लगती है सर कि नंबरेटर डिनोमिनेटर में कैसे किसको लिखेंगे, ऊपर नीचे में ऐसा लग जाता है। देखिए, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का लगभग कंपेयर किससे करने के लिए बोला है? पुरुषों से सर। पुरुषों से, जिससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, सिंपल ओके सा सर, बात। ओके। ठीक है, ओके जैसे सर। कि हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस, है ना? प्रॉफिट लॉस में हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? क्राइमोल से ना, हमेशा। तो देखना, क्राइमोल हमेशा नीचे जाता है। जी ठीक सर, है, जी जी। हाँ, जिससे कंपेयर करने का बोला जाएगा ना, वो आपका सीधा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, हर जिसे कहते हैं उसमें चला जाएगा। ठीक है, जी सर। मतलब वही हो गया। आपको अगर पूछा जाता है कि आपको 100 में से आप या 500 में से आपको 480-85 मिल गया, तो कंपेयर किससे करेंगे? आप जब परसेंटेज निकालोगे, कंपेयर किससे करेंगे? वो वाला टोटल से ना, 500 से करेंगे ना, तो वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 500 नीचे आ जाएगा, आपको 480, 85, 90 जो भी मिला वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 100%, 98% आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जी सर। आप देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूको। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूको फ्रॉम सिटी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट more than the number of females working in PNB from the same city. Now you have to find the number of females working in UCO Bank from city A, and you have to find out the number of females working in PNB from city A, same city. Now you have to find out
In some bank it is more females are working. What percentage? What is the they have asked you to find out the females working in UCO from city A is approximately what percentage more women are working in UCO bank from PNB from the same city. ठीक है? शहर ए में यूको बैंक में कार्यरत महिलाओं की संख्या उसी शहर में पीएनबी में कार्यरत महिलाओं की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यूको एंड पीएनबी सीटीए सी यूको एंड पीएनबी सीटीए. एक मिनट. नाउ यू सी. नाउ कंसीडर PNB and Yoko CTA. Okay, females. How many females are there in PNB in CTA? According to the question, how many females are there? 116. 116. And Yoko, how many females are there? 500. 500. तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो यूको में किस में ज्यादा है? इन व्हिच बैंक मोर फीमेल्स आर देयर? Yuko. यूको कितना परसेंट ज्यादा है? बस दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. सी इन पीएनबी इन सीटीए द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 116 and in UCO in CTA the number of females is 500. Now they have asked you what percentage of females are more in UCO bank compared to PNB. ठीक है सर 384 ज्यादा है. 384 ज्यादा है. यस 384 ज्यादा है. आप किससे कंपेयर करने के लिए बोला है? वो नीचे आ जाएगा into 100%. ठीक है, किससे कंपेयर करने के लिए बोला है? एक बार देखिए. 384 नंबर आ गया आपका जो नंबर आ गया वो 384 नंबर आ गया. ठीक है, डिफरेंस रहेगा निकालना है पहले. यूको बैंक में कार्यरत महिलाओं की संख्या उसी समय पीएनबी में कार्यरत महिलाओं की संख्या से, मतलब पीएनबी से कंपेयर करना आपको है कि नहीं? मतलब पीएनबी से कंपेयर करना है ना. पीएनबी नीचे आ जाएगा, 116 आ जाएगा नीचे. 384 ज्यादा है into 100%. देखिए कितना आता है इसको करके. ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले इन यूको number of females in city A. कितना था? 500 था यूको में. जी सर 500. Okay, 500. Number of females in CTA in UCO 500. Number of females in CTA from or in PNB कितना था? 116. 116. ठीक है, तो यूको में कितना ज्यादा है? यूको में 500 minus 116, 384 ज्यादा है ना. So in UCO the number of females is working is 500 and in PNB for the same city number of females working is 116. So obviously in UCO the number of females is more. Okay, what is the more number of females? What is the difference? 384 more females are working in UCO bank than PNB, correct? Okay, now they have asked you ki the number of females working UCO from CTA approximately what percentage more than the number of females working in PNB? What percentage more than the number of females? So they have asked you to compare this number, this 384 number, to the number of females working in PNB. Means it will be 384 more people are working, more females are working in UCO with respect to PNB. What percentage of number of females working in PNB? They have clearly told you.
what should be in the denominator into 100%. Means this is the more number of females working in UCO divided by the number of females working in PNB. Okay, and they have asked you to compare it. फिर से प्रॉब्लम कर रहा है काल जैसा. फोर्थ ऑप्शन आएगा सर, शायद 3.3 समथिंग कुछ होना चाहिए सर. 3.3 मतलब into 100% करिए उसको. into 100% भी है ना साथ में. 321.0 आता है सर. हाँ ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है. तो 384 divided by 116 into 100%. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए you have to multiply them by 100%. So इसमें क्या आएगा 3.31 into 100% ना, तो 331% almost. Now see, आपका क्वेश्चन में है तो 331% आंसर होगा. Is it clear? Yes, sir. यस सर. जी सर. कोई डाउट नहीं है ना? सर ये 3.31 कैसे आया, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए. इसको आप डिवाइड कर दीजिए ना. 384 डिवाइड बाय 116, इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट. नहीं तो इसको छोटा करते रहिए. 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा तो 4 25 26 27 28 29. ठीक है, 4 से 29. हाँ, और ये 4 से हो जाएगा 384 डिवाइड 4 हो जाएगा आपका 60, और आपका हो जाएगा 666. 384 डिवाइड बाय हो जाएगा 4, ऑलमोस्ट हो जाएगा 96 हो जाएगा ये. ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, और जाएगा क्या इसका 3 से और जाएगा 29/96, और नहीं जाएगा. देखिए उसको डिवाइड करिए, उसको 29/96 कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 87 हो जाएगा. फिर 9 आएगा. ठीक है, फिर आपका पॉइंट लाइए, 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 87, फिर 3 आ जाएगा. इधर एक पॉइंट है, 0 आ जाएगा. बार बार क्रश कर रहा है. 29 96/29. देखिए 96/29. ठीक है, तो 96 ये 3 बार जाएगा 87, फिर आपका 9 आ जाएगा, पॉइंट लाइए, 0 आ जाएगा, 29 से 87, फिर से 3 आएगा, पॉइंट है तो एक 0 ला सकते हैं, ये 1 आ गया, फिर आपका 29 आ गया, 1 कंटिन्यू होता रहेगा, तो 3.31 आ गया ना. 3.31 into 100%, तो कितना होगा 331%. ठीक है, क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जी सर. Yes, sir, it's clear. ठीक है, तो इस तरह का डिविजन आप सीख लीजिए, क्योंकि आपका यू विल नॉट गेट कैलकुलेटर इन द एग्जाम, सो मैनुअली यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस. ठीक है, अगर इस तरह का कैलकुलेशन आ गया तो यू हैव टू कैलकुलेट मैनुअली, एज यू विल नॉट गेट एनी कैलकुलेशन डिवाइसेस और लाइक कैलकुलेटर. इवन आपका पीसी में भी सब कुछ डिसेबल रहेगा. इवन इन योर पीसी आल्सो एवरीथिंग विल डिसेबल्ड, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट मैनुअली. ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स working across all the 6 cities together is more than 1700 in how many cities? पूछा क्या, ये जो 6 सिटी दिया गया ना, A B C D E F, they have given you 6 cities and the location of bank basically in 6 cities. In how many cities the number of female working across all the banks are more than 1700? ठीक है, सभी 6 शहरों में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्नलिखित में से किसमें 1700 से अधिक है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं. उधर मींस जो फीमेल्स है, फीमेल्स काम कर रहा है ना सिटीज, जैसे कि सिटीज ए में सम फीमेल्स आर देयर, सिटीज बी में आल्सो सम फीमेल्स आर देयर, सी में सम फीमेल्स आर देयर, इन डी आल्सो some females are there, E also some females are there, F also some females are there, across all the banks. If you add the number of females, you will get certain number of
females working in CTA, CTB, CEF, है ना? Now they have asked you to find the number of cities where the number of females working is more than 1700. Clear? Question clear है? अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। देखो, CTA में, SBI में, सारे बैंक में कुछ फीमेल्स काम करते हैं। CTB का भी फीमेल्स है, जैसे कि SBI का पकड़ लो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है। ऐसे हर सिटीज में, हर बैंक में कुछ कुछ फीमेल्स है। तो CTA में जो फीमेल्स है, CTA में सारे बैंक का फीमेल को ऐड करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा, फीमेल्स का नंबर। CTB का भी मिलेगा, CTC का भी मिलेगा, D का भी मिलेगा, E का भी मिलेगा, F का मिलेगा। पूछा कौन सा सिटीज में, कितने सिटीज में नंबर ऑफ फीमेल्स 1700 से ज्यादा है? सर बी का तो हमने निकाला था ना, वो तो ज्यादा ही था 1795। हाँ, B का निकल लिया था ना हम लोगों ने, हाँ 795। तो एक निकल गया, ऐसे निकालिए। बाकी का भी देखिए किस में 1700 से ज्यादा आ सकता है फीमेल्स। ठीक है, CTA में कितना है देखिए, यहीं पे कर लेते ऑप्शन हैं। में देखिए कौन, ऑप्शन ऑप्शन में में कौन है से आपका, दिए सर? ऑप्शन में दिया है आपका, एक मिनट में देख के बताता हूँ। ऑल द 6 बैंक, एग्जैक्टली 3 बैंक्स, एग्जैक्टली 4 बैंक्स, एग्जैक्टली 2 बैंक्स। बिना निकाले पता नहीं चल पाएगा, निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सबको। Yeah, it is 4, I think. ओके, सभी 6 शहरों में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्नलिखित किसमें 1700 से अधिक है? Only PNB and Bank of Baroda, both the banks have less अच्छा, than आपको ऐसे ऐड करना है, आपको ऐसे ऐड करना है, ऐसे आपको ऐसे ऐड करना है फीमेल्स, है ना? SBI across all cities, the number of females in SBI are this, okay? Then in PNB this, then in UCO across all the cities this, सारे female employees across all the cities in BOB is this, है ना? इसको ऐड करना है। IRB में इतना है और इसका इतना है, ठीक है? So this is the number of females you have to find out. Suppose in SBI, number of females across A, B, C, D, E, F is summation of all this, correct? In PNB, the number of females working across all the cities is this. In UCO, the number of females working across all the cities is this. BOB is this. BOB, sum of all this. And UBI is this one, means 357 plus 190 plus 256, 181, 192. Clear है? कैसे ऐड करना है इसको? मैं पहले गलती से ऐसे बता दिया था, वो नहीं होगा। Clear है? It is clear है? Is it clear to you all how to add? Means they have asked you to find the number of females working in each bank across all the cities. Now, in which banks across all the cities the number of females working is more than 1700? This is the question they have asked you. Clear है? Is it clear? Is the question clear? Yes. तो SBI में कितना है? 1891 sir. That's 224 plus 456 plus 388 plus 378 plus 120 plus 325. कितना है इसका? इसका कितना है? 1891 sir. 1891, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। नेक्स्ट UBI का PNB का कितना आएगा? कोई बताइए। PNB का 1393. 1393. 1393। 393. ओके, देन यूको का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसान है। 1795. 1 यूको कैसे करें? 500 प्लस 345 प्लस 456 प्लस 388 प्लस 234 प्लस 439। सर एग्जाम में टाइम कम रहता है ना, तो हमने तो क्या किया, आगे आगे का डिजिट कर दिया था, तो उससे भी पता चल गया था, निकल गया था सवाल। हाँ ठीक है, कोई 400 प्रॉब्लम नहीं है। 500 ऐसे आइडिया लगा के ना, तो हाँ भी ठीक हो है, गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसे भी, बहुत लोग करते हैं, टाइम नहीं मिलता, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। मेरा तो
मैं जब क्वेश्चन पेपर सबमिट किया था 29 सेकंड ही बाकी रह गया था। इसी सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में टाइम लग 2362 हो टाइम जाएगा लग गया सर, था। 2362 हो जाएगी सर, कितना? 2362 सर। 2362. 2362 for UCO. ओके, आईओबी कितना है, सॉरी बीओबी कितना है? बीओबी में आपका कम आ जाएगा शायद, 454 ना, 454 प्लस आपका 285 प्लस 235 प्लस 175 प्लस 165 प्लस 234 हो जाएगा 1548। 1548. I think the answer is 4 bhaiya. Only हाँ, ठीक है। BOB and PNB have less than 1700. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। आरबी में कितना आएगा बताइए? आरबी में भी है 234 प्लस, नहीं आरबी में 235 प्लस 166 प्लस 599 प्लस 190, इसमें कम आएगा लग रहा है, प्लस 189 प्लस 155 प्लस 278। आईओबी नहीं, 235 प्लस 166 प्लस 599 7 प्लस for है IO. It आईबी is more than 1700. 1700. 767. 16 67. 1767. 1767। हाँ सर, 1767. Okay, 198 plus 334 plus 235. Okay, 1767. And in UBI? 1465. 1465. 1465. Okay, in how many banks? Now the number, in how many banks the number of females is more than 1700? This is the question they have asked you. So 1, sorry, SBI 1, then 2, then 3. 3 na? 3 na? It is 3. Yeah, 3. Exactly in 3 banks. Yes. 1891, 2362 and 7067. This was the question. In how many banks the number of female employees more than 1700? So exactly 3 banks. 3 बैंकों में ये क्वेश्चन समझ में आया? Waste of time adding every value. हाँ, we have no other option actually. So that's why this part is actually getting 10 marks is easy, but calculation will take lots of time. This is the problem in DI. Otherwise, getting 10 marks is very easy. Obviously, getting 20 marks out of 20 is very easy, but it will kill much time. But the only key is how much you can practice. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? If you practice more, then you will take less time to calculate. See now the difference between the number of males working across all the 6 banks together in CTC. Okay, the difference between the number of males working across all 6 banks together in CTC and the number of male working across all 6 banks together in CTD. Okay, शहर सी के सभी 6 बैंकों में कार्यरत पुरुषों की संख्या और शहर डी में सभी शहरों में कार्यरत पुरुषों की संख्या का बीच का अंतर कितना है? You have to find the difference between the male employees across all 6 banks. Which cities? CTC and CTD. Clear a question? Yes, sir. You have to find the number of male employees in CTC of all 6 banks and CTD of all 6 banks. Then you find the difference. That's it. Very easy, but it will take much time. You have to see CTC, admit all banks, CTC male is to D
मेल अक्रॉस ऑल बैंक्स, ठीक है। कितना होगा मेल अक्रॉस ऑल बैंक्स, मेल कितना होगा? सीटीसी, ओनली सीटीसी, ठीक है। 457 प्लस 346 प्लस 124 प्लस 235 प्लस 590 में कितना है 574 प्लस 589. Okay, this is the number of males working in all 6 banks in CTC. Is it right? 457 plus 346 plus 124 plus 235 574 589. Just check or tell me. Correct है? सर क्वेश्चन दिखाइए, ऐसे तो पता नहीं चलेगा हमें। क्वेश्चन तो सामने है आपका। क्वेश्चन देखिए, शहर सी में सी के नहीं सभी नहीं सर, टेबल टेबल और टेबल टेबल टेबल, अच्छा ओके। देखिए इसको मैं थोड़ा अभी इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। आपको पूछा गया सी में, पहला सिटी सी में जितना मेल है, जैसे ये मेल है, ये मेल है सारे बैंक में, ठीक है। सीटीसी का सारे बैंक में जितना मेल है और सिटी डी में जितना मेल है, ये हो गया। फिर आपका कहा गया ये हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये सीटीसी में जितना मेल है और सिटी डी में जितना मेल है उसका डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। So they have asked you to find out the difference between the number of males working in CTC across all banks and the number of males working in CTD across all banks. Okay, so what we have to do? We have to find the total number of males working in CTD across all banks and the total number of male employees working in CTD across all banks. Then we have to find the difference between them. Okay, in some cities the number of males will be higher. Okay, so they have asked you to find the difference. Let's say in C, suppose it is 1000 and C in D it is 1500. So the difference is 500, like that. Question clear है? So CTC में कितना मेल काम करते हैं across all banks? 457 plus 346 plus 124 plus 235 plus 574 plus 589. Correct है? So what is the total number of males working in CTC across all banks? Is it 457 plus 346 plus 124 plus 235 plus 574 plus 589? Is it? 2325 आया सर, बाकी और से पूछो सर। C का कितना आया? 2325 आया सर। 2325 आया, ओके। हाँ बराबर है सर, It's 2355। ठीक है, तो डी का भी बता दीजिए। डी का हो जाएगा आपका, डी में कितना मेल काम करते हैं? देखिए 114 प्लस 124 प्लस हो जाएगा आपको 235 देन प्लस 235 देन 255। पावन जी समझ में आ रहा है ना? जी सर जी। 255 प्लस 324, ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ही आसान है बस। 189, ये कितना आता है देखिए? 1241। हाँ जी 1241। अच्छा, वो आपको मैंने एक चीज वो अंतर निकालने के लिए बोला था। अब फाइंड आउट द डिफरेंस, मैंने रेशियो लिख दिया गलती से, ठीक है। इसका रेशियो नहीं होगा, उसका डिफरेंस इज 1084, ऑप्शन 4 डिफरेंस निकालने के लिए बोला, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए बोला। अब क्या कितना आया था? 1241 ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सी, हाँ, सो नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन सी सिटी इज 2325 and number of male working in CTD is 1241. So what is the difference between them? Obviously the minus. So it is 1084 ना? यस सर, ऑप्शन डी। ठीक है, चेक कर लिया ना, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1084 is the answer. ठीक है, तो क्लियर है? Is it clear to you all? Now Yes. tell me whether data interpretation is tough or easy. Now you tell me. Data interpretation tough है या easy है? बताइए आप। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन easy है कि नहीं? सर ये वाला इजी है बट मैन्युअली करने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अब की थोड़ा बार सा सर रेशो वाला दिया हुआ था ना, वो थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, ये वाला तो कौन मेरा सा निकल गया था सर। कौन सा अब की मई में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें रेशो से कुछ दिया हुआ था, वो थोड़ा मुझे टफ लगा आपके बारे। ये वाला? हाँ सर, कुछ मुझे फिर वो मैं तो छेड़ा ही नहीं सर फिर मैंने। इसको मैं जस्ट इसको दिखा देता हूँ, आप करिए इसको, इसे आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को देखिए। ये जून का सेशन में आया था इस बार। हाँ, the table given below shows the distribution percentage of number of candidates qualifying a common entrance test in 6 cities at UF during the year 2020 and 21, along with the ratio of male and females, ठीक है, among the qualified candidates. The total number of qualified candidates in all the 6 cities together during 20 and 21 are 3,800 and 4,600 respectively. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए। The total number of qualified candidates in all the 6 cities, qualified candidates in all the 6 cities together was during 2020 was 3,800 and 2020 में 4,600 था, ठीक है। Based on the data in the table, find out the answer the following question. नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2020 और 21 के दौरान 6 शहरों ऐसे एफ में आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा की CIT CET में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का बंटन प्रतिशत अर्हक पाए गए विद्यार्थियों में पुरुष और महिला के अनुपात सहित दर्शाई गई है। वर्ष 2020 में और 2021 में 26 से शहर में आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हक पाए गए उम्मीदवार की कुल संख्या, इसको सिंपल कर देता हूँ, वर्ष 2020 में 3,800 था और 2021 में क्वालिफाइड हुआ 4,600। अब आपको पूछा गया तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या पूछा, देखिए। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट 2020 में कितना था? टोटल क्वालिफाइड 800 दिया। इन 2020 3,800 और 21 में कितना था? 4,600. 4,600. So this is the main figure they have given to you. Now they have asked you distribution of qualified candidates. अब ये जो distribution है qualified candidates, CTA में 13% qualify किया, in CTA 13% of the total candidate qualified. Total candidate कितना था? 3,800. Out of 3,800, 13% is qualified in CTA, 27% qualified in CTB, 11% in CTC, 20% in CTD, 8% in CTE and 21% in CTF, ठीक है। And out of 4,600, 24% in CTA, 15%, 23%, 17%, 8%, 13% is B, C, D, E, F respectively, ठीक है। ये नंबर ऑफ फीमेल्स है और मेल्स का जो है रेशियो दिया गया, निकाल लेंगे यहाँ से नंबर ऑफ मेल्स कितना है। अगर आउट ऑफ 300, इफ द टोटल qualified candidate is 3,800 and in city A 13% is qualified out of 1,300 3,800 13% is qualified in city A and the ratio of male and female is 8:5. Can you find out the number of females and male? कर सकते हैं क्या? हाँ सर, अगर सिटी 494 आ जाएगा सर वो तो। हाँ इसी तरह से, ठीक है। तो ये बहुत आसान कर दिया। आप देखिए क्वेश्चन में जाइए आप, ये मैं जस्ट आपको हिंट्स दे दूंगा, आपको करना है। द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ इन 2020 इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन द सेम ईयर। पूछिए क्या है। वर्ष 2020 में शहर एफ से अर्हक पाई गई महिलाओं की संख्या उसी वर्ष शहर ई से अर्हक पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यह हिंदी वर्ड में पहली बार देख रहे हो, अर्हक। यस सर। हाँ सर एग्जाम क्वालिफाइड में का हिंदी मतलब, इंग्लिश दोनों एक साथ में आएगा ना? हाँ दोनों एक साथ आएगा। आप जो है उसको स्विच करके भी देख सकते हैं और दोनों लैंग्वेज में आप कॉमन रखिए, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन में। सर यहाँ ई जी से कंपेयर कर रही है ना सर, ऐसा ई नीचे हाँ। आएगी यहाँ क्वेश्चन में सर।
हाँ 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 हाँ, यस यस, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में है। स्टार्टिंग में हिंदी समझा देंगे सर। हाँ ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगा स्विच करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप स्विच करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके तो सर। आपके पास दोनों ऑप्शन है, देख के जो भी अच्छा लगे, दोनों लैंग्वेज में कॉमन रहेगा तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसको उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, 10 नंबर है वहाँ पे। ठीक है ना, तो दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा कॉमन रखिए। सर आप ये क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिए ना। हाँ मैं डाल देता हूँ, ये पूरा डाल दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ ओके कि नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ, आपको निकालना है पहले द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ। फर्स्ट आपको निकालना है सिटी एफ में कितना क्वालिफाई किया, फर्स्ट आपको निकालना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ। कितना होगा टोटल क्वालिफाइड, टोटल UULIFID इन और फ्रॉम सिटी एफ, फ्रॉम सिटी एफ कितना होगा, सिटी एफ में कितना है 21% ना, 21% ऑफ व्हाट, 3800 का 3800 का 21 3800 इंटू कितना आएगा 798. 760 plus 38 798, हाँ। Now see, now they have asked you to find out the number of females. Now what is the number of females qualified? This is the 798 includes both, 798 includes both, क्या 798 में दोनों है, क्या है मेल फीमेल मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया। देखिए अब हम करते थे ना 40 लीटर मिल्क में 5:3:2 में पानी है, सपोज मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है 3:2 है, तो मिल्क कितना वाटर कितना है, कैसे करते थे हम लोग, ऐसे करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे, हाँ जी करते थे। करते थे। तो आपको 798 में से 13:8 आपका मेल टू फीमेल है, कुछ समझ रहे हो, 798 में से into 13 divided by 28 21 13:8 आपका मेल टू फीमेल है, तो फीमेल कितना है बताइए, 798 इंटू 21 नीचे आ 13 जाएगा इंटू 8 है ना, मेल टू फीमेल हाँ 21 यस, नीचे आ जाएगा 13 हाँ ऊपर आएगा 13 ऊपर आएगा, फीमेल बोला है ना, तो फीमेल का देखिए मेल टू फीमेल 13:8 दिया, 8/21 नहीं आएगा क्या सर? 8/21, यस 8 by 21 आएगा हाँ 8/21। इसको करिए कितना आता है, देखिए कितना आता है, देखिए इसको, ये तो जाएगा, पक्का जाएगा, इसको 363 38 आएगा 38 ऊपर से, फिर 8 से 38 गुणा कर। 304 भैया. It's 304. हाँ टोटल 8 से 304, गुणा कर। 4. ओके। देन सेम वे आप निकालिए, ये इसका भी निकालिए, CTE का भी निकालिए, ठीक है, CTE का भी निकालिए, CTE में टोटल कितना है, ई टोटल 6. इसको निकालिए, एक मिनट। हेलो, हाँ, कितना आया CTE का टोटल कितना है, देखिए CTE में कितना है 8% ऑफ 3800 ना, 300 इंटू 8/100 कितना आया 304 304। Now see what they have asked you. 368 30400. 304. 304, okay. Now see, 304 आएगा now क्वेश्चन को आप देखिए, नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड इन सिटी एफ, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टोटल
qualified candidate of city in the same year. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? वर्ष 2020 में शहर F से अर्हक पाए गई महिलाओं की संख्या उसी वर्ष में E से अर्हक पाए गए टोटल उम्मीदवारों की कितना प्रतिशत है? ठीक है, आपका F में इतना महिला आ गया. In F we have found the number of females is 304 and in the same total candidate was 304. They have asked you कि ये जो 304 है, जो F का जो फीमेल है, You should female. be taking 4,600, right? No? नहीं, It's for the same 2020, year. 2020, It is for the 2020, same year. 2020, 2020, सेम ईयर लिया ना, सेम Oh. same ईयर. year, 2020. ठीक है. So this is the common incident happen to everyone. ठीक है, वो confusion होता है इस तरह से. ठीक है, तो आपको पूछा गया कि ये जो फीमेल का है, ठीक है, जो F जो आपने निकाला F सिटी और जो E सिटी का टोटल है E टोटल, वो F E टोटल का कितना परसेंट है? समझ में आया? क्वेश्चन देखिए. We 100%. 100%. 100%. Yes, 100%. yeah. F means 304. We have found out. E total means in 2020 it is also 304 into 100%. So it will be 100%. Now see what are there in the options. 100% is there. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा कि नहीं पहले बताइए. Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार फिर से बता दीजिएगा. देखिए, पूछा कि सिटी F में 2020 में कितना महिला क्वालिफाई किया, महिला कितना क्वालिफाई किया. ठीक है, वो सिटी ई में उसी साल कितना टोटल लोग क्वालिफाई किया, उसका कितना परसेंट है? समझ में आया? तो सिटी एफ में देखिए टोटल 21% मतलब 798 आपका टोटल जो स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाई किया. ठीक है, और 798 में से आपको पूछा गया, बोला गया कि 13:8 जो है वो मेल टू फीमेल है. तो टोटल फीमेल कितना होगा? 798 इंटू 8/21, 13:8 बताया गया ना आपको ऑलरेडी. 798 तो टोटल है, उसमें मेल टू फीमेल है आपका 13:8. ठीक है, ये फीमेल है ये मेल है, तो टोटल कितना होगा? 21, 8/21, तो आपको 304 आ गया फीमेल. ठीक है, इतना फीमेल क्वालिफाई किया सिटी ई से, सिटी एफ से. आप पूछा कि सिटी ई में उसी साल कितना लोग टोटल क्वालिफाई किया, तो वो भी 304 निकला. 3800 का 8% उस साल क्वालिफाई किया था सिटी एफ में. सिटी ई में देखिए, सिटी ई में तो बोला ये जो सिटी ई में जो टोटल क्वालिफाई किया, ठीक है, और सिटी वो है 304 और सिटी एफ में जो फीमेल क्वालिफाई किया था वो भी 304 है. तो पूछा सिटी एफ का जो फीमेल है वो सिटी ई का टोटल का कितना परसेंट है. ठीक है, इसलिए मैं ई टोटल लिखा. ई टोटल है सिटी एफ ई का, इसका जो 304 निकला और जो महिला सिटी एफ में 304 निकला, वो ये 304 का कितना परसेंट है. क्लियर है? मतलब एफ फीमेल, एफ सिटी का फीमेल, ई मेल का, ई टोटल का, सॉरी, ई टोटल का कितना परसेंट है. ठीक है, एफ फीमेल बाय ई टोटल इंटू 100%, ये पूछा आपको. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो बाकी इसका ना, इसका बाकी आप करिए, बहुत आसान है ये जो है. द एवरेज नंबर ऑफ, देखिए सर आप एवरेज डाल सर भेज दीजिए दीजिएगा. ग्रुप मैं डाल में. देता हूँ. ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, इसका भी डाल दूंगा. एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज टुगेदर इन 2021. ठीक है, तो फीमेल आपको निकाल सकते हैं. टोटल देखिए 2021 में 4600 था, तो टोटल आपको निकाल लेंगे ऐसे. ऑल सिटीज में कितना कितना है, 24%, 4600 को 26% कितना आता है, 15% कितना आता है, 23% कितना आता है, निकाल लेंगे. यहाँ से जो भी आएगा उसको 5:7 में फीमेल कितना निकाल लीजिए. ठीक है, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला, क्लास करके डिवाइड बाय ऑल 6. ठीक है, ये मैं हिंट आपको दे दिया. ठीक, इसके बाद बोला द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सीटीबी 2021 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी इन द सेम ईयर 2020. CTB का you have to find out the city total females qualified from CTB and then you have to find the number of
male qualified from cities E, then you have to find the percentage with respect to the male qualified in cities E. ठीक है, आप खुद से करिए, बहुत आसान है. The difference between number of male candidate qualified from city B 2020 and city A 2020. ठीक है, B and A. आपको B का मेल निकालना है यहाँ से 2020 21 B21 और E 2020 B21 E 2020. तो आपको B21 यहाँ सबको मेल निकालना है और E यहाँ सबको मेल निकालना है. ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है. कर पाएंगे? कर लेंगे ना इसको? मैं ग्रुप में डालता हूँ. ठीक है, आप करना है कोशिश कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए. कर लेंगे आप लोग इसको? जी जी. ठीक है, तो मैथ सिलेबस आपका खत्म होता है यहाँ पे. आपका मैथ्स DI सारे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए मुझे. आई एम अवेलेबल फॉर एनीवन. सर अभी एक आध क्लास और DI का ले लीजिएगा, इसमें से थोड़ा एक आध क्वेश्चन कल बता दीजिएगा. इसी में 5 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए. अगर कोई डाउट होता है तो बताइए. जी ठीक जी, है? आप भेज दीजिएगा. जी मैं इसको ग्रुप में डालता हूँ. आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए. इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना. ठीक है, सुनील सर, हरिओम सर. हाँ, बोलिए. सर आपने बता रहा था ना सर, इससे पहले जो क्वेश्चन था जो सभी 6 शहरों में था